یہ مدرسہ مفید عام ہے جہاں پہلی بار سائنس میلے کا انعقاد ہو رہا ہے، اور آج ہم اس سائنس میلے کی ویڈیو جھلکیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سائنس میلے میں مدرسہ مفید عام کے طلباء کے علاوہ مدرسہ مفید نسوان کی طالبات نے بھی حصہ لیا تھا۔ اسکول کی انتظامیہ، اساتذہ، والدین اور ہیڈ ماسٹر صاحبان قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ان طلباء کے اندر پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اس میلے کا انعقاد کیا۔ کثیر تعداد میں عوام نے اس میلے میں شرکت کی اور طلباء کی ہمت افزائی کی۔ جناب چلمکار عبدالقدیر صاحب نے میلے کا افتتاح کیا۔ آئیے اب ہم اس سائنس میلے کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس سال اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمارے بچوں کے اندر یہ صلاحیت کی ہے کہ ہم اس سال اس اسکول میں سائنس فیئر، یہ سائنس نمائش نہیں ہے بلکہ سائنس فیئر ہے، اس کا ہم نے انعقاد کیا ہے۔ اس سنہرے موقع، یہ بڑی مسرت کا موقع ہے، اور اس سنہرے موقع پر میں ہر ایک کا اپنے دل سے، میرے طرف سے اور مفید عام ایجوکیشنل سوسائٹی کی طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے تمام آئے ہوئے مہمان کا، چونکہ ابھی 10 ہوا ہے، 10 بجے ہوئے ہیں، تو ہمارا معمول ہے کہ آنے میں کوئی تاخیر ہوتی ہے، انشاءاللہ آئیں گے۔ اور جیسا ہم یہ بھی بتاتے چلو کہ یہ 2 روزہ پروگرام ہے، آج کے دن، آج صبح سے 10 تا 5 بجے تک دیگر اور اسکول کے بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس مطلب گرلز اینڈ بوائز کے لیے، اور خصوصاً پیرنٹس اور دیگر جوائنٹس کے لیے جو کوئی بھی آنا چاہتے ہیں، اور اس بچوں کی جو مظاہرہ وہ کریں گے اور اپنی انٹریکشن جو کریں گے ہمارے ساتھ، جو پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہے اس میں دلچسپی جو رکھتے ہیں وہ آئیں اور ان کی ہمت افزائی کریں۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اور مینجمنٹ کی طرف سے ہمارے تمام آئے ہوئے مہمانوں کا، خصوصاً ہمارے ہائی اسکول کے جو ٹیچرس آئے ہیں جو آج کے جج ہوں گے، ان تمام کا تہ دل سے مطلب اہلاً و سہلاً کہتے ہوئے استقبال کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا، اور میں دعا کرتا ہوں ہمارے نونیال بچوں کو اللہ تعالیٰ خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے۔ اب میں ہمارے صدر صاحب جناب پی ایم خالد صاحب کو درخواست کرتا ہوں کہ وہ چند کلمات بیان کریں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم اراکین اور محترم مہمانان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی خدمت پیدا کیا ہے،
स्पीशीज को ले गया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान एक कान के मानिंद है, महीस के मानिंद है, जिससे सोने का महीन होता है, चांदी का महीन होता है, उसी तरह इंसान की मिसाल है। इस हदीस से बात मालूम होती है कि हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत या कोई जौहर अता किया है, लेकिन अफसोस कि हम इंसान अपने इन खूबसूरत जौहर को नहीं पहचानते, जिसकी वजह से हम लोग अपना अपने में नहीं बनाते। आज के साइंस पर इसी मकसद के लिए है कि हमारे बच्चों के अंदर उनके हिडन टैलेंट्स को, उनके खूबसूरत जौहर को भरा जाए, ताकि वो इसको पहचान सकें और आइंदा जिंदगी में उसको तरक्की दे सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे इस मकसद में हमको कामयाबी फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह इन्नल्लाहा ला युख़्लिफुल मिआद। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। रब्बना फ़ाग़फिर लना ज़ुनूबना वग़फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ुल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अरे वाह, हाँ वेरी गुड। सबकी परियां मां परी हाँ माशाल्लाह। हाँ? छोटे परियां अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सानिया है। मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरा प्रोजेक्ट 5 का आबशार यानी ऊँची का सबसे पानी के को आबशार में एक आबशार से बनता है। तेरा लंबा सफर करते हुए शहरों और गाँव पार करते रास्ते में जब कोई गहरी जगह मिल जाए तो दरिया को इसमें गिरना पड़ता है। आबशार से बाहर की खूबसूरती में इजाफा होता है। अस्सलाम वालेकुम। That is innovation. गोश्त खाने वाले जानवर को गोश्त खोर कहते हैं। शेर, बाघ, चीता गोश्त खोर जानवर है। वेरी गुड।
कैसे पैदा बादल कैसे पैदा थे बोलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अफीफ़ा है, मैं 5th स्टैंडर्ड पढ़ती हूँ। मेरा टॉपिक आबिदार है। पानी के एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील होना, यानी ज़मीन से फ़िज़ा को जाना और फ़िज़ा से ज़मीन को वापस आना आबिदार कहलाता है। इसके 4 मरहले होते हैं: तबख़ीर, तक़सीर, रसूब साजी और ज़मीन पर वापसी अमली सियाह। नदियों में, तालाबों में, समंदरों में और पौधों में भी पानी होता है। ये पानी सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, यही तबख़ीर कहलाता है। इसके बाद ये बुखारा छोटे छोटे बादल बन जाते हैं, यही तक़सीर है। जब ये बादल ठंडी हवा से टकराते हैं तो रसूब यानी बारिश बन जाते हैं और ज़मीन पर बारिश की शक्ल में वापस आते हैं। इसी तरह पानी का चक्कर होता है, यही आबिदार कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नसूहा नूरैन है, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरा मॉडल का नाम दिन और रात। ज़मीन को सूरज से रोशनी मिलती है। हमारे ज़मीन की शक्ल गोल है, इसलिए पूरे ज़मीन पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। आधे ज़मीन पर सूरज की रोशनी होती है और आधे ज़मीन पर अंधेरा होता है। ज़मीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती वहाँ अंधेरा होता है, यानी वहाँ रात होती है। ज़मीन अपने आप होती है, इसलिए ज़मीन पर दिन और रात पैदा होती है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Faiza. I am studying 5th standard. Now I am going to tell about opposites: happy, sad, near, far, hot, cold, open, close, right, left, girl, boy, down, up, full, empty, many, few. बोलो बेटा मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मदरसा है मोबाइल फ़ोन के। मेरा टॉपिक ये है मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान। आप मैं फ़ायदे बताना चाहती हैं, यानी डिक्शनरी। मोबाइल फ़ोन से हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम बातचीत कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम फ़ोटो ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम घड़ी और अलार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम वीडियो ले सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम गेम्स खेल सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम कैलेंडर इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम टॉर्च लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम रास्ता में जाने के लिए मैप नक्शा इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से हम व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा करना अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलीना मुस्कान है, मैं दर्जा 4 में पढ़ती हूँ। ये रॉकेट है, इसको खुलाई जहाज भी कहते हैं। रॉकेट हवा ना होने वाली जगहों पर भी काम करता है। ये पतला और लंबा होता है। रॉकेट में भी गैस इस्तेमाल होता है जो ऑक्सीजन के साथ जलता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आफिया है, मैं दर्जा 5 में पढ़ती हूँ। खाना काबा दुनिया में अल्लाह का घर है, इसे बैतुल्लाह भी कहते हैं। ये सऊदी अरब के शहर में मक्का मुकर्रमा में खाना काबा की तामीर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल ने मिलकर की। ये मुसलमानों का क़िबला है। दुनिया भर के मुसलमान यहाँ पर उम्रा और हज करने के लिए आते हैं। हज साल में एक दफ़ा ज़िल्हज के महीने में किया जाता है, जबकि उम्रा सारा साल किसी भी वक्त अदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खदीजतुल कुबरा है, मैं तीसरी जमात में
पढ़ती हूँ। हेल्दी फूड, सेहतमंद ग़िज़ा, ये सब खाने से इंसान को ताकत मिलती है। हेल्दी फूड या सेहतमंद ग़िज़ा ये दांत और हड्डियों को ताकत देती है, आँख की रोशनी बढ़ाती है, हाजिमा में मदद देती है, दिमाग तेज होता है और ज़हन चालाक होता है, मोटापा नहीं आता, शुगर नहीं होता, बालों को बढ़ाता है, कैंसर जैसी बीमारियों से रोकता है, दिल की बीमारियों से बचाता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कलती हूँ। क्या आप देख रहे हैं एक गिलास में अंडा पानी में डूबा हुआ है और दूसरा गिलास में अंडा दे रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि एक गिलास में खालिश पानी है और दूसरे गिलास में नमक मिला हुआ पानी है। खालिश पानी में कसाफत कम रहने की वजह से अंडा डूबा हुआ है। नमक मिला हुआ पानी में कसाफत ज़्यादा है, इसकी वजह से अंडा दे रहा है। इससे हमें मालूम होता है कि सादा पानी से नमक के पानी की कसाफत ज़्यादा होती है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शिजा, मैं 5वीं जमात में पढ़ती हूँ। ये पानी की सफाई गंदा पानी किस तरह पाक कर सकते हैं ये देखिए। पहले गिलास में बड़े बड़े पत्थर, दूसरे गिलास में छोटे छोटे पत्थर, तीसरे गिलास में मिट्टी और चौथे गिलास में रूई। जब गंदा पानी को पहले वाले गिलास में डाला जाता है तो वो छोटे छोटे पत्थर वाले गिलास और मिट्टी से होते हुए रूई वाले गिलास में आता है। तो यहाँ पानी में जो भी गंदगी होती है रूई इसको साफ करता है और आखिर हमें पाक और साफ पानी मिलता है। इसी तरह गंदा पानी को साफ किया जा सकता है। मेरा टॉपिक तमाम पौधों से हासिल होने वाली ग़िज़ाएँ। पौधों के 5 हिस्से होते हैं, जड़, तना, पत्ता, फूल, फल। जड़ के 5 हिस्से होते हैं, गाजर, मूली, शलजम। तना के हिस्से होते हैं, प्याज, हल्दी, आलू, अदरक। पत्ते, खजूर, पुदीना, करेपा और भाजियाँ। फूल, गोभी का फूल, केले का फूल, भिंडी, मूंगे की फली, टमाटर, बैंगन। पक्के फल, अंगूर, लौज, जाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद अजहर चौथी जमात में पढ़ता हूँ। मैं उर्दू ज़बान में इसम के मुताबिक समझा गया है। इसम वो कलिमा है जो किसी शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो। इसम की 2 किस्में हैं। नंबर एक किस्म आम, नंबर 2 इसम खास। इसमें आम किसी शख्स, चीज़ या जगह के आम नाम को कहा जाता है, जैसे लड़का, पार, किताब, परिंदा। इसमें खास किसी शख्स, चीज़ या जगह का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद इरफान तीसरी जमात का तालिब इल्म। मेरा प्रोजेक्ट है ज़मीन की हिफाज़त से बबर है। मैंने यहाँ आलूदा माहौल के नुकसानात और एक साफ सुथरे माहौल के फ़वाइद दोनों हालात पेश किए हैं। प्लास्टिक की बेकार अशिया, कारखाने का धुआं और फुसलार, जंगल आग का कटाव की वजह से माहौल गंदा हो जाता है। इसके बरअक्स हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे और प्लास्टिक की अशिया का इस्तेमाल कम करेंगे तो हमारा माहौल हरा भरा होगा। एक साथ के माहौल में ताज़ा हवा यानी ऑक्सीजन की मकदार ज़्यादा होती है, जो सेहत के लिए हवाई चक्कियों और शक्ति तवानाई से बिजली तैयार करना माहौल के लिए फ़ायदेमंद है। शुक्रिया। अच्छा, आपका नाम? यासीन गूगल। वेरी गुड। वालेकुम अस्सलाम, जोर से बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, मैं गुलाबाज हूँ, मुझे एस्ट्रोनॉट कहते हैं। अक्सर लोग साइंसदान और गुलाबाज में फ़र्क नहीं करते। साइंटिस्ट वो है जो ज़मीन पर रहकर दुनिया में मौजूद चीज़ों पर नई नई तहक़ीक़ात और इजादात करते रहता है। गुलाबाज यानी एस्ट्रोनॉट वो है जहाँ खुला में जाकर वहाँ मौजूद सैयारों और सितारों का मुशाहिदा करके वापस आता है। खुला ज़मीन से तकरीबन 10,000 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जहाँ सितारों और सैयारों का जुम्न मौजूद है, जहाँ शम्स खाना रहता है, जिसे हम स्पेस कहते हैं। बच्चों, अपनी सोच को उड़ान दो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा अजीम हस्ती ने बचपन में सितारों को देखकर उनके पास जाने की तमन्ना की थी और उन्होंने ये कर दिखाया। अजीज साथियों, हमें भी चाहिए कि उन्हीं की तरह एक अच्छी सोच को खत्म करने वाला बने। शुक्रिया।
तुम्हें भी इन्वॉल्व हो जाओ. It is a game. Assalamu alaikum. It is a game. Say the color of each word. Don't read the word. How fast can you say it? Please say बोलो. Please read. पढ़ो. Black, white, yellow, green. Wrong. जान साहब आप पढ़िए. खाली साहब आप पढ़िए. अच्छा पढ़िए. रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू. पढ़ो पूरा जल्दी fast. How fast you can? Excuse me. How fast you can read? अच्छा येलो, ऑरेंज. No orange. No, Wrong. red. It is black. It is green. Blue, black, and yellow, red. Should be fast yeah. So, what is green? वो पूरा कैच करना. Blue, black, then yellow, red. Very good, very good. How it is? बेहतरीन हाँ? हाँ. Feedback. शो कर सकते. तमिल में है. वो भी जबरदस्त. Sure. क्या वो क्या चीज़ है? समझो. क्या किस चीज़ का दरख्त है वो? क्या है उसके पत्ते क्या है? अच्छा. किस चीज़ से बनाए हैं आप लोग ये? अच्छा पेंसिल से है. Very good. Pencil and birds. Very good. I am going to explain about automatic street light. This project can be used in real life because it can save electricity. If there is nobody on the road, why should we waste the electricity? Answer. How does it work? Here I have used sensors and light. If any vehicle or any person comes in front of the sensor, then the light will turn on. If the person or thing passes away from the sensor, the light will turn off automatically. Thank you. Okay, very good. और एक बार समझो. Project can be used in real life because it can save electricity. If there is nobody on the road, why should we waste the electricity? Answer. How does it work? Here I have used sensors and light. If any vehicle or any person comes in front of the sensor, then the light will turn on. If the person or thing passes away from the sensor, the light will turn off automatically. Thank you. Very good.